Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Mansab rank. Mansab rank or Mansabdari system. Akbar was considered to be the main architect of this system, that is the Mansabdari systems. और ये जो institutions था, it was an institutions of the both political along with the economic significance. So this institution, that is the Mansabdari institution, it possesses both political and economic significance. Okay, at the same time these institutions played a critical role in both first consolidation and later on the disintegration of the Mughal Empire. Okay, now let's see in detail. अच्छा, ये जो वर्ड मनसब है इसका मीन्स क्या हुआ? मनसब मीन्स अ प्लेस, अ पोजीशन और एन ऑनर or a rank. Okay, so which happened to be an integral part of the elaborate Mughal bureaucracy. So it's an integrated part of the Mughal bureaucracy. Okay, and as per the Percival Spear, he points out that ये जो मनसबदारी सिस्टम है, it was an core of the core system. Core of the core system means look, it's a Mughal bureaucracy. और ये जो ये सिस्टम था मनसबदारी सिस्टम, it was in a small fraction of Mughal bureaucracy. So he considered this institution is an elite institutions within an elite system. Okay, so elite system within an elite system. अच्छा, ये जो मनसबदार्स थे, they were appointed to all civil plus military post. But one thing to be remembered that these mansabdars were not appointed as a judiciary or the judicial officers, judiciary officers. तो एग्जाम में might be possible this statement come that ये जो मनसबदार है, they were appointed for all the post civil, military and the judiciary. बट ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. ठीक है, उनको सिविल और मिलिट्री पोस्ट तो दी जाती थी एक्सेप्ट दैट ऑफ जुडिशरी. ठीक है. अच्छा, ये जो मनसबदार थे जनरली कौन कौन सी पोजीशंस हेल्ड करते थे? जनरली वजीर, बख्शी, फौजदार और सूबेदार. These positions were generally held by the mansabdars. Okay, अच्छा, ये जो मनसबदार इंस्टीट्यूशन है, it appears to be an Central Asian institution. So एक व्यू है उसके अकॉर्डिंगली ये जो इंस्टीट्यूशन है, इट्स एन सेंट्रल एशियन इंस्टीट्यूशंस. ओके, एट द सेम टाइम देयर इज आल्सो इन व्यू दैट ये जो इंस्टीट्यूशन है, दिस इंस्टीट्यूशन केम टू इंडिया along with whom? Along with the Babur. Okay, so during the Babur time, instead of the term mansabdar तो term यूज नहीं होता था, but instead of this term mansabdar, term वजहदार was used. Okay, वजहदार was used. But हम क्या कह सकते हैं, ये जो वजहदार है, it was equal to the mansabdar? No, there is a definite difference. ठीक है, so there is a definite difference between the term both wajadar and the mansabdar. Okay, so these terms are not one and the same. Okay, now under the regime of the Akbar, mansabdari system became the basis of both military and the civil administration. हमने देखा था. Okay, and it was also believed that Akbar followed the principle, that is Akbar followed the principle of Genghis Khan in fixing the grades. ये जो grades दिए जाते थे मनसबदार को, in fixing the grades of मनसबदार्स. अब ये जो ग्रेड्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें प्रोवाइड करते हैं अबू फजल, कोर्ट पोएट ऑफ अकबर.
एज पर द अबू फजल स्टेट्स दैट ये जो अकबर है, अकबर प्रोवाइडेड 66 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार्स, ठीक है, जो कि रेंज करते थे फ्रॉम द कमांडर्स ऑफ 10 हॉर्समैन, ओके, टू दी 10,000 हॉर्समैन। बट ये जो अबू फजल है, ही फेल टू प्रोवाइड द होल 66 ग्रेड, इंस्टेड ऑफ दिस उन्होंने सिर्फ 33 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ओके। बट एज पर द अबू फजल 66 ग्रेड्स आर देयर इन दी मनसबदारी सिस्टम्स, ओके। अच्छा, ये जो टर्म मनसब है, इट डिराइव्ड और बेसिकली इट डिसाइडेड द स्टेटस ऑफ द होल्डर। ये जो मनसब है, ये क्या करता था, ये डिसाइड करता था, इट डिसाइडेड द स्टेटस, जो भी इसको पजेस करता था या उसको होल्ड करता था, ओके, उसका स्टेटस बताता था इन द ग्रेडेड ऑफिशियल हायरार्की, जो कि हमने इससे पहले देखा है, ठीक है। सो ये जो मनसब है, ये डिसाइड करता था स्टेटस, जो भी उसको पजेस करता था, और इसका होल्डर इन अ ग्रेडेड ऑफिशियल हायरार्की, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो फिक्स्ड द पे ऑफ द होल्डर। ये जो सिस्टम था उसकी, एज पर दिस सिस्टम्स, जो उसकी पे होती थी वो भी कंसिडर की जाती थी, फिक्स की जाती थी, पे फिक्स की जाती थी एज पर दिस सिस्टम्स, दैट इज, और द होल्डर ऑफ द सिस्टम और द मनसबदार, एंड इट इज ऑल्सो मेड इट ऑब्लिगेटरी। उसकी सम ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज भी दी जाती थी। वो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज क्या हो जाती थी, दैट इज द मनसबदार टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंटिजेंट हॉर्सेस along with the necessary equipments। तो ये आपको मनसबदार को मेंटेन करने होते थे, ठीक है। अगर हम देखें इन द बिगनिंग अप टू द टाइम पीरियड 1595 to 1596, पर्सनल पे along with the size of contingent was represented by a single rank of chart, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका, दैट इज जो पे हो गया दिस टाइम पीरियड में, पे अलॉन्ग विद जो कंटिजेंट है, जो भी आपको अलग से हॉर्सेस और इक्विपमेंट्स का वो है, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रैंक, और उसको जात से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो 1595 से 1596 उस टाइम पीरियड तक पे और कंटिजेंट जो है वो सिंगल रैंक से रिप्रेजेंट किया जाता था, दैट इज जाट। बट नाउ आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर 1596, अपार्ट फ्रॉम जाट एक और रैंक भी यूज करने लगे, दैट इज द सवार। सो बोथ जाट एंड सवार रैंक्स वर नाउ यूज्ड, और ये डिसाइड करती थी कि बोथ द पोजीशन along with the status of the mansabdar, status of mansabdars, ओके। अच्छा, अब ये जात और सवार क्या है, लुक, ये जो जात है, जाट डिसाइडेड द मनसबदार्स पर्सनल पे और द तल्ला भसा, दैट इज, एंड हिज रैंक इन द ऑफिशियल हायरार्की। पे उसका जो उसकी हो गई, और उसकी जो तल्ला भाषा है और तनख्वाह हो गई, एंड और अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल हायरार्की, किस हायरार्की में वो रहेगा, किस टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में रहेगा, ओके। ऑफिशियल हायरार्की हो गया। और जो सवार था, सवार रैंक इसलिए होता था जो कि फिक्स करता था कि हॉर्सेस along with the horsemen that to be maintained by the mansabdar, apart from that जो अमाउंट होता था he received to maintain his contingent, ठीक है। अब क्या अमाउंट आपको मिलेगा और अलॉट होगा आपको अपने कंटिजेंट को, दैट इज जो भी आपका कंटिजेंट है उसको मेंटेन करने के लिए, ओके। नाउ रिगार्डिंग द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ सवार, जो सवार है, देयर इज नो unanimity of the opinion, in the sense that ये जो as per the different historians, its meaning is quite different as per the different historians, such as William Irwin, Abdul Aziz and Arthur Ali,
Arthur Ali, they offered the different versions of the meaning of सवार. Okay. Now अगर हम देखें again in the year 1595 to 1596 ये जो मनसबदार है it was further divided into 3 classes. मनसबदार it was further divided into 3 classes. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड दी थर्ड. ओके, अब ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट क्लास है, इट वॉज एन इक्वल. सो ये जो फर्स्ट क्लास में होता था, इट पोजेस द इक्वल नंबर ऑफ बोथ जात एंड सवार. ओके, सेकेंड क्लास में क्या होता था, जाट प्लस हाफ और मोर देन हाफ ऑफ सवार. ये सेकेंड क्लास में होता था. थर्ड क्लास में क्या होता था, थर्ड में होता था जात प्लस लेस देन हाफ ऑफ सवार. सो ये डिफ्रेंसिएशन भी आ गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1595 टू 1596. ओके, अच्छा, देयर वॉज नो फिक्सिंग ऑफ द नंबर्स ऑफ द मनसबदार, बट इन 1595 to 96 Akbar maintained somewhere close to 1803. ऑल्दो इसका नंबर फिक्स नहीं होता था, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था 1595 to 96 अकबर मेंटेन क्लोज टू 1803 मनसबदार्स. एंड और ये जो आपका जो दैट इज अ नंबर है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, द नंबर रोज टू 14,499. ओके, नाउ द एम्परर जो होता था, दे कैन रेज द रैंक ऑफ मनसबदार्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर अलॉटेड टू द मनसबदार. ठीक है, कोई भी एक एम्परर है, एम्परर जो है वो रेज करता था रैंक ऑफ अ मनसबदार. कैसे? बाय जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ और द नंबर अलॉटेड टू, जो भी नंबर अलॉट किया गया था मनसबदार को. और देखो, ये जो रीजन था, अकबर के टाइम में 1803 था जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, और ये इंस्टीट्यूशन का दैट इज द कंस्ट्रक्ट किया था. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब इट वॉज क्लोज टू 14,499, और इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स इट लीड्स टू द जागीरदारी crisis which we discuss in later. Okay, so mansabdar and jagirdar was jagirdar was related terms, और the jagirdari crisis है, it was a resultant of the same. ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको. ओके, अच्छा, we also came to know that those who had the 500 or less than the 500, जिनके पास 500 या फिर उससे कम जो रैंक होती थी, उसको कहते थे मनसबदार. ठीक है, those who had 500 at the same times but below 2,500, 500 से ज़्यादा पर 2,500 से कम, उनको कहते थे अमीर्स. और those who possess the plus 2,500 they were called the अमीर ए उम्दा. अमीर ए उम्दा और अमीर ए आज़म. ठीक है, अमीर ए आज़म और अमीर ए आम और अमराहा. ओके, फर्दर ये जो मनसबदार्स थे, दे वर आइदर पेड इन कैश. अगर उनको दिस मनसबदार को अगर कैश में पेड किया जाता था तो उनको कहा जाता था नकदी. ठीक है, दोज हु वर पेड इन जागीर, उनको कहा जाता था जागीरदार्स. ओके, और नो मनसबदार कुड होल्ड ऑन टू द सेट जागीर फॉर अ लॉन्ग टर्म. अगर उसको कोई भी जागीर दी जाती थी तो ये जो कोई भी मनसबदार था, उसको वो जागीर काफ़ी टाइम तक होल्ड करके नहीं रखी दी जाती थी फॉर द लॉन्ग टर्म्स. एदत से उसको कैसे उसको काउंटर करते थे? सो दोज मनसबदार्स आर अमाउंट टू और लायबल टू रेगुलर ट्रांसफर, ताकि जो जागीर उसको दी गई है इन लिeu ऑफ देयर सैलरी अलॉन्ग विद इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर कंटिजेंट, वो उसके पास ज़्यादा देर तक ना रहे, तो उसका रेगुलर ट्रांसफ़र करते थे.
एज एन चेक्स एंड बैलेंसेस. ओके, अच्छा ये जो मनसब पोस्ट है और द ऑनर और द डिग्निटी, इट वॉज नॉट एन हेरिडिटरी. ठीक है, ये जो पोस्ट दी जाती थी मनसबदार, इट वॉज नॉट हेरिडिटरी. अब ये जो हेरिडिटरी नहीं है, इट लैप्स्ड, ये लैप्स हो जाती थी, इट लैप्स आफ्टर द डेथ और डिसमिसल ऑफ द मनसबदार. और जो भी उसकी प्रॉपर्टी उसने एक्वायर करी होती थी मनसबदार ने, ठीक है, दैट रिटर्न टू द स्टेट. और ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम था, रिटर्न टू द स्टेट आफ्टर दैट, आफ्टर डेथ और इट्स dismissal. Okay, while जो basic feature था of this systems introduced by the Akbar, it was continued. At the same times various new features were added during the successors regime. ठीक है, और one such feature है that was the introduction of the use of the conditional rank or the mashrut, which means an increase of sawar rank for a short period. ठीक है, जो अकबर के सक्सेसर है उन्होंने ये सिस्टम को कंटिन्यू रखा. एट द सेम टाइम जो भी इसके एलिमेंट्स थे कंटिन्यूड रहे और कुछ न्यू एलिमेंट्स भी ऐड हुए. एक उसमें से एलिमेंट्स था मशरत, और मशरत क्या था, दैट इज द इंट्रोडक्शन और द यूज ऑफ कंडीशनल रैंक. कंडीशनल रैंक, ठीक है, और इसका मीन्स क्या था, दैट इज द इंक्रीज ऑफ सवार रैंक, इंक्रीज ऑफ सवार रैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ठीक है, हमें परमानेंट नहीं था, फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ओके ओके, नाउ अगर हम जहांगीर की रेन में देखें, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर दिस इंस्टीट्यूशन सॉ एन इंपॉर्टेंट अपडेट और एन इंपॉर्टेंट इनोवेशन. ठीक है, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म दुआ अस्पा और शिया अस्पा, which means a mansabdar held a mansab of 4,000 jat, that is, which means a mansabdar held a mansab of 4,000 jat or 4,000 sawar, and he was eligible, तो वो एलिजिबल होगा टू 4,000 प्लस 4,000, दैट इज द 8,000, और बोथ द पे एंड द ऑब्लिगेशंस. इन दिस कंडीशन द मनसबदार वॉज डबल्ड कर दी जाती थी. ओके, सो इन दिस वे जो जात को अलग कंसिडर किया जाता था, सवार को अलग किया जाता था, और जो उसकी पे थी, पे अलॉन्ग विद जो ऑब्लिगेशन, जो उसकी ड्यूटीज हैं, दैट इज इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिजेंट, उसको मनसबदार को डबल कर दिया जाता था. सो दिस वॉज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑल्दो इट वॉज एन डिबेटेबल इंस्टीट्यूशन. इसका काफ़ी वेरियस मीनिंग है एज फॉर द डिफरेंट हिस्टोरियंस, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका ये है. ओके, नाउ अगर हम देखें जहांगीर, नेक्स्ट इज दी शाहजहां. Shahjahan also introduced new regulations that prescribing the size of the contingent under the various sawar ranks were introduced. So, used to prescribe the size of the contingent, under the various sawar ranks. ठीक है, ये जो सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द शाहजहां. ओके, नाउ द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ मनसबदार हम औरंगजेब के टाइम पे देखेंगे. नाउ सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब we encountered that there was an tremendous increase of the number of mansabdars during the reign of Aurangzeb, and this first of all increased the number of mansabdar. This lead to an jagirdari or the agrarian crisis, which we discuss in next detailed video. ठीक है, so अब ये जो जागीरदारी और एग्रेरियन क्राइसिस हुआ, it played an important role in the
collapse of Mansabdari system. At the same times, it's also played an important role in the decline of Mughals. ओके सो दो इन थ्योरी अगर हम इसको एक एज ए थ्योरी देखें, ये जो मनसबदार पोजीशन थी इट वाज ओपन टू ऑल. ठीक है, ये जो मनसबदार की जो पोजीशन थी इट वाज ओपन टू ऑल. बट ये जो इंस्टीट्यूशन था और ये जो पोजीशन थी ये की फैक्टर्स और बेसिकली वैसे वेरियस स्ट्रेटजी की तरह यूज होती थी. ओके सच एज जो मुगल्स थे दे प्रिफरली गिवन इंपॉर्टेंस टू द हेरिडिटरी फैक्टर्स. ठीक है, जो मुगल्स थे instead of this position that is the Mansabdari ranks it was open to all, but जो मुगल्स थे so they give importance to the heredity factor. ठीक है, such as the Khanjats or the house born of various zamindars. They were given the preference. Okay, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती थी along with the various Turanis, Iranis, Afghans, Rajputs along with the Marathas and the Deccanis by the Aurangzeb. ठीक है, किसके लिए? फॉर द स्पेशल और द पर्टिकुलरली फॉर द मिलिट्री रीजन्स. तो ये जो इंस्टीट्यूशन था मनसबदार का इसको ऐसे स्ट्रेटजी की तरह भी यूज़ किया जाता था और किसी को अपीज करने के लिए भी यूज़ को मनसब हाई मनसब दिया जाता था. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया. दैट वाज यूज बाय द औरंगजेब जब उन्हें स्टार्ट की थी साउथ कैंपेन. सो ही स्टार्टेड गिविंग दिस मनसबदारी रैंक्स टू द वेरियस राजपूत्स अलॉन्ग विद द मराठास एंड द डेकनीज. ठीक है, सो एज ए पीस ट्रीटी और बेसिकली किसी को अपना अलाई बनाने के लिए और किसी से अपनी हेल्प लेने के लिए